So today we will discuss about one more important biomolecule that are lipids. So already we have talked about carbohydrates. Cell consists of various biomolecules such as carbohydrates, proteins, amino acids, vitamins, enzymes. But cell membrane constitutes lipids. So lipids are the most important part of cell membrane. Cell membrane is made up of lipids. Now coming to definition of lipids. What are lipids? Lipids are important biomolecules which are hydrophobic in nature. It means that they are soluble in non-polar solvents, but they are insoluble in water or water-like solvents. They are known as polar solvents. Are you getting my point? So हम यहाँ ये लिख सकते हैं lipids are important biomolecules which are hydrophobic in nature, it means that they are insoluble. This means that they are insoluble. They are insoluble in water or polar solvents like water, ethanol, methanol, but they are soluble in non-polar solvents like cyclohexane, benzene, petrol, ether, etc. One more thing is that lipids are soluble in slightly polar solvents. Slightly polar solvents. Such as chloroform, carbon tetrachloride. अगर आपको पता होगा कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है हमारे पास अगर 2 एटम है, 3 एटम है, 4 एटम है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा होगी तब भी पोलरिटी क्रिएट होती है एंड दीज सॉल्वेंट्स आर नोन एज पोलर सॉल्वेंट्स. अगर यहाँ ये मैं सिंपल वाटर के एग्जांपल लेता हूं, दिस इज वाटर, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है. ऑक्सीजन इज electronegative, more electronegative than hydrogen, so यहाँ polarity create हो गई है. This is known as polar solvent. Similarly, अगर मैं यहाँ से कोई सा भी अल्कोहल लूंगा तो यहाँ भी polarity create हो गई. This is polar solvent. In comparison to non-polar solvent, अगर मैं cyclohexane लूं, यहां भी कार्बन है, 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 यहां भी कार्बन है. सो दे आर सेम टाइप ऑफ एटम्स, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है. सो दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स.
So this was the definition of lipids. Now coming to classification of lipids. Lipids are broadly classified into three types. One is simple lipid, second one is compound lipid, and third one is derived lipid. ओके, अगर हम सिंपल डेफिनेशन पे आ जाएंगे, व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स ऑफ एस्टर्स ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल्स, और लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। सिंपल अगर हम आ जाएंगे, फिर हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे कि किस बुनियाद पे इनकी क्लासिफिकेशन होगी। पहले हम लिपिड देखेंगे सिंपल। अगर हम एक अल्कोहल लेते हैं, यहां से हम एक एसिड लेते हैं, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिड। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या है? वी आर टेकिंग 2 to 3 drops of any catalyst, that's acid catalyst. Acid catalyst का मतलब होता है we can take HCl, we can take H2SO4, or we can use any mineral acid like benzoic acid or any other acid. वो H2 देता है। अब मसला क्या होता है? यहां से ये होता है, वाटर की एलिमिनेशन होती है एंड देयर इज एस्टर फॉर्मेशन। So this is esterification reaction. This reaction is done with the help of alcohol and acid in presence of catalyst to form monoester. Monoester का मतलब एक ही एस्टर बन गया, ठीक है। अगर दो एस्टर, इसको हम पुरानी डिफिनेशन जो थी इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर दो एस्टर बन जाएंगे तो बताते हैं डाइग्लिसराइड या डाइएस्टर। अगर तीन एस्टर बन जाए तो उनको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड और ट्राइएस्टर। सो अब हम आ जाएंगे अपनी क्लासिफिकेशन पे। व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? सिंपल लिपिड्स आर फॉर्मड और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स ओनली। दे आर एस्टर्स, जो एस्टर ये है, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स ओनली। सो दिस इज सिंपल लिपिड्स, दीज आर सिंपल लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में क्या है? दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, बट दे कंटेन सर्टेन अदर ग्रुप्स लाइक फॉस्फोरिक ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप और एनी अदर ग्रुप। सिंपल लिपिड में क्या था? खाली दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। समझ आ रहा है आप लोगों को? कंपाउंड लिपिड में क्या है? दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, but they contain an additional group like nitrogen, phosphorus or any other group. Coming to derived lipids. Derived lipids are obtained from hydrolysis of simple and compound lipids. Okay, are you getting my point? ये जो चीज है, ये हम derived lipids हम simple और compound lipids में निकालते हैं ना। हम देखेंगे जो हमारे सिंपल लिपिड्स है, ये फिर से दो टाइप्स के हैं। एक है न्यूट्रल लिपिड्स, दूसरा है वैक्सीज। कंपाउंड लिपिड्स भी दो तरीके टाइप्स के हैं। वन इज फॉस्फोलिपिड्स and second one is glycolipids. Derived lipid तो ऐसा ही है, सिंपल, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम इनको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे।
फर्दर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि हमारे जो लिपिड्स है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसमें हमारे आते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक लॉरिक, मिस्टिटिक, पॉमिटिक, सिटिरिक। सिमिलरली हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से होते हैं, उसमें हमारा होता है ओलिक होता है, लिनोलिक होता है, लिनोलेनिक होता है, रिसिनोलिक होता है या आइसोरिसिनोलिक होता है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।